Hi everyone, welcome back to my channel Achieving Alpha and welcome back to another episode of Smart Money Analysis. थोड़ा सा शायद कंस्ट्रक्शन का वही जा सकता है, so I am apologizing about that in advance. But anyway, let's begin. So if you are a follower of the global markets, तो कल you must have seen कि US में there was a really good bloodbath and not only in US, in all the global markets across the globe काफी अच्छा एक fall देखने को मिला and there are multiple reasons for that, right? First one is जो Fed का ड्रामा चल रहा है. They are talking about increasing rates. Inflation is at 7.5%, which is the highest in the last 40 years in the US. अपने यहाँ पे no one acknowledges, that's okay, but US में people do acknowledge कि inflation है, that's a problem, and even they don't know like how to get out of that. एकदम immediately if they do the rate hikes, US has so much of debt that if they are doing rate hikes, then it's a problematic for them as well, right? So the Fed is ideally confused that what should be done, and they don't have a lot of choices to be very honest. So we'll see what could be coming up in the market. Plus, there are the tensions on the Russia and the Ukraine side. Russia is planning an invasion on Ukraine, and तो काफी tension है वहाँ पे. And there are certain things which I can see, which we'll talk about coming up, that can really impact us in a very brutal way. So if you see the valuations of our market, we are still trading at fairly decent valuations. Decent, I mean expensive. The valuations are still not cheap in our market. Whereas you would be shocked to hear कि Nasdaq के जितने भी tech stocks है, more than 60% of the stocks in Nasdaq have fallen by more than 50% or more. So the stock market in America has already sort of crashed, but you can only see कि जो index है that is staying up because of the heavyweight stocks, जो basically FANG stocks है वहाँ पे Microsoft, Facebook, Apple, Amazon, Netflix and so on. But again, that is something which has to be seen कि अपना market किस तरह से valuations को factor करता है. The only thing is the support of RBI and the accommodative stance is what's pushing us up and holding us up, or DIIs. तो DIIs जो मनी मार्केट में पंप कर रहे हैं, a lot of that is your money or the retail money. And I really don't want to make this statement, but I would say it's a bold statement that the DIIs are kind of ruining your money, buying at the upper levels. But it's okay. The regulations are such that कि उनके पास भी ज्यादा कुछ बचता नहीं. But enough of it. Let's start and talk about the market. So this is the Telegram channel that we have. I gave the update Friday ko ki things are not looking very good. You can join the Telegram channel by the way. And I also try to share some of the trades which I have taken. So जैसे I bought some long term puts yesterday. Then Indigo में I took some trade. ये मैंने real time share करा था. It's giving us really good returns as of now. And जैसे जैसे expiry close आएगी, you are going to enjoy more of Theta DK. Then I created another video on this one indicator that has predicted every single recession in the history with 100% accuracy. So the reason behind creating this video is that there are certain things in the economy, specifically on the bond side, that is not looking very healthy. तो मेरा aim यहाँ पे कोई panic spread करना नहीं है. I myself have a large sum of money invested in the Indian markets as well as in the US markets, and ideally even I want कि market long term में ऊपर जाए, और वो जाएगा, but that will take time. It's not a very good and a wise decision कि आप 18,000 पे निफ्टी है and you are going all in on the market, like putting every money. And even I know people जो लोन लेके काफी पैसा लगा देते हैं and then like they are just pulling their hairs out right now. And this is just the start. I could be wrong, I could be entirely wrong, but I think we have a really good downside open from here in our markets. So ठीक है, that is some of the things. I don't want to be taking too long. Let's go to the analysis. Okay, so let's start off with the daily time frame chart of Nifty 50. Again, 3 दिन अच्छी खासी बाइंग थी, बाइंग प्रेशर था, but we opened gap down and we sort of just stayed down for the entire day. In fact, we even made a low of about 17,300. But still, the market doesn't look very strong from here on. There is weakness, data में भी weakness and charts front पे भी there is some weakness. अब यू वुड हैव टू सी कि ये गैप कब फिल होता है. इट कैन टेक अ रियली लॉन्ग टाइम बिकॉज इट्स नॉट अ गारंटी कि गैप फिल होगा ही होगा. जैसे इवन अ गैप ऑन 16,600 इज सॉर्ट ऑफ पेंडिंग. तो यहाँ से अगर फॉल बहुत ज्यादा एग्रेसिवली कंटिन्यू होता है तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर हम कमिंग डेज में ये 200 ईएमए को काफी जल्दी टच कर दें. हो सकता है फेब्रुवरी में ही टच कर दे, बट इफ नॉट फेब्रुवरी देन डेफिनेटली मार्च में आई सी एटलीस्ट निफ्टी गोइंग टिल 16,000 मार्च और लेटर. अब एज यू सो ऑन द टेलीग्राम चैनल मेरे पास अप्रैल और जून की पुट्स हैं, तो आई एम होल्डिंग ऑन टू देम. इनफैक्ट आई हेज देम. कल जो फॉल हुआ और जो आईवी बढ़ी या जो विक्स बढ़ा मार्केट में, आई बेसिकली मेड द डेबिट स्प्रेड, और उससे जो मेरा रिस्क है वो काफी हद तक कैप हो गया एंड आई गॉट अ रियली गुड रिस्क टू रिवॉर्ड.
Now all I got to do is just sit tight on the market and wait for 16,500 and below. In fact, 17,000 maybe I will exit in really good profits, but I would like to hold that for 16,500. And according to my own analysis and judgment, I think 16,000 might come very soon in the next 1 to 2 months. Again, I could be totally wrong. You can curse me for that, and you might have a different viewpoint, or you just might not want to believe कि whatever I'm saying is true because you went all in at 18,000 and now you're pulling your hair apart. Anyways, let's go to the option chain. अच्छा, before option chain, let's try to analyze the market breadth की क्या थी. तो निफ्टी 50 में you will see कि 50 stocks में से almost 44 were declining and only 6 were advancing. So this is really bad, right? You can see कि जो negativity थी market में, that is overall across the market. And Nifty Bank में you will see 12 stocks में से 11 were declining and no stock, only one stock was advancing. That was IndusInd Bank and that too only 1% up. Fin Nifty, again you will see कि 20 stocks थे. 20 के 20 were declining and they were declining pretty heavily. Just look at this. Muthoot Finance 2.82% down. ICICI Bank 1.82% down. HDFC 2% down. And HDFC Bank also again significantly down. तो दिस शोज यू कि जो मार्केट में नेगेटिविटी है दैट इज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम. एंड एफएनओ स्टॉक्स में यू विल सी कि ऑलमोस्ट 200 स्टॉक्स में से 183 वर डिक्लाइनिंग एंड 16 वर एडवांसिंग. सो अगेन दिस इज नॉट अ वेरी हेल्दी साइन. तो नेगेटिविटी है और परसिस्टेंट रहेगी. विल सी दैट इन द डेटा, बट लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शन चेन फर्स्ट. तो ऑप्शन चेन में यू कैन क्लियरली सी कि लोअर लेवल्स पे थोड़ा ओआई गेन हुआ है. जैसे यहाँ पे जो ओआई है 16,300 पे ऑलमोस्ट 24.5 लाख का न्यू ओआई गेन हुआ है. बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिस इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग फ्रॉम द एफआईआईज और द स्मार्ट मनी. दिस इज नॉट सेलिंग. तो सेलिंग किसने की होगी? प्रोबेबली बाय द प्रोडेस्क और द रिटेल, बट दिस इज एक्चुअली बाइंग. व्हाई? आई विल शो यू इन द डेटा. बट यू कैन सी कि यहाँ पे जितने भी बड़े नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं दैट इज मोस्ट प्रोबेबली बाइंग. 17,000 पे देयर माइट बी सम सेलिंग. तो what they have done is the FIIs have basically created put debit spreads. वो मैं आऊंगा अभी डेटा पे, we'll talk about that. बट यहाँ पे द ऑप्शन चेन इज नॉट लुकिंग वेरी गुड क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी कि अच्छी खासी राइटिंग हुई है ऊपर वाले लेवल्स पे. 17,400 500 600 सब पे अच्छा ओआई ऐड हुआ है ऑन फ्राइडे. तो अगेन दिस नॉट लुकिंग गुड. पीसीआर की हम बात करें तो पीसीआर इज एट 0.8, तो अभी डाउन साइड है. ऑलमोस्ट 0.5 पे आता तो देर इज अ बाउंस बैक एक्सपेक्टेड. बट अगेन उसकी कोई गारंटी नहीं होती. आई हैव सीन 0.4 ऑल्सो एंड अपसाइड में आई हैव इवन सीन टिल 2. तो दैट इज नॉट अ वेरी रिजिड इंडिकेटर दैट यू शुड प्रोबेबली रिलाई ऑन. तो ठीक है, ऑप्शन चेन इज नॉट लुकिंग वेरी गुड. 17,000 पे एक सपोर्ट आ सकता है. ऑलरेडी एसजीएक्स निफ्टी को देख के लग रहा है कि हम गैप डाउन खोलेंगे ऑन मंडे और अच्छा खासा गैप डाउन खोलेंगे. अनटिल अनलेस जो मंडे मॉर्निंग है वहां पे यूएस फ्यूचर्स सिग्निफिकेंटली ग्रीन में नहीं ओपन होते. बट प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा है. देयर इज सम टेंशन ऑन द रशिया एंड यूक्रेन साइड. फेड की साइड पर अलग टेंशन है. तो काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं मार्केट के पास. एंड आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू बाय द डिप पर्टिकुलरली इन यूएस स्टॉक्स. आई एम करंटली बाइंग द डिप क्वाइट हेवीली इन द यूएस स्टॉक्स. और उसमें काफी सारे स्टॉक्स आई एम ट्राइंग टू अक्यूमुलेट एट दीज लेवल्स. एंड इट्स परफेक्टली ओके विथ मी इफ दे गो फर्दर डाउन. आई एम रेडी टू बाय मोर बिकॉज दीज आर गुड कंपनीज एंड अगले 5 से 10 साल में आई सी देम एट अ रियली गुड प्राइस लेवल्स. तो दिस वाज द ऑप्शन चेन. एक बार ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करते हैं. ग्लोबल मार्केट्स यू सी कि काफी ज्यादा रेड में टैंक हुए सारे के सारे मार्केट्स. डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 1.5% डाउन. S&P 500 ऑलमोस्ट 2% टू क्लोज टू 2% डाउन. एंड Nasdaq you will see 3% down. Now this is insane. And the thing that I was telling you is quite problematic is the Brent oil. तो आप क्रूड ऑयल देखो, इट हैज रीच टू 95. अब मुझे नहीं पता अगर नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग में भी आरबीआई ने रेट हाइक नहीं करे, सो व्हाट दीस गाइस आर डूइंग. They are essentially creating a big blunder on our side, and the hit is going to be on the common man. तो yeah, this is not very good. In fact, इसी की जो रशिया का मार्केट है that has tanked 7% in a single day. This is like insane. AGX निफ्टी की मैं बात करूं, so this is not 17,260. Let me show you कि SGX निफ्टी particularly I think 17,200 के आसपास में क्लोजिंग हुई है. Yes, you can see 17,200 पे क्लोजिंग हुई है. And if you open close to this level, तो you can expect कि एक again panic selling type आ सकती है and we might even test 17,000 in the opening minutes. But again, let's go to the data now and try to understand कि data में क्या activity रही है. We'll start off with FII. नेट लॉन्ग इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगेन ड्रॉप हुआ है. तो पास्ट कुछ डेज में एफआईआईज को काफी ज्यादा लॉस हुआ है. इधर उन्होंने अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप किया बट मार्केट वेंट अप. देन कल वो लॉन्ग्स लेके गए एंड मार्केट गैप डाउन. बट राइट नाउ इट लुक्स लाइक दे अनवाउंड सम ऑफ दीज लॉन्ग्स एंड दे एडेड सम मोर फ्रेश शॉर्ट्स. तो यहाँ पे दिस डेफिनेटली नेगेटिव. सो इंडेक्स फ्यूचर्स में भी डेटा में नेगेटिविटी है. स्टॉक फ्यूचर्स में अगेन देयर इज सम नेगेटिव डेटा आफ्टर द लास्ट 3 days. Some minute amount of shorts build up and some long unwinding as well. So stock futures में the data is negative.
नेट नंबर अराउंड 52% लॉन्ग के आसपास चल रहा है, इधर ऑलमोस्ट 48% लॉन्ग है FI इन द इंडेक्स फ्यूचर्स. बट अगेन द डेटा इन इंडेक्स फ्यूचर्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स बोथ इज नेगेटिव. एक बार इंडेक्स ऑप्शंस देखेंगे तो इंडेक्स ऑप्शंस में यू विल सी कि जो नंबर ऑफ कॉल लॉन्ग्स है दैट आर ऑलमोस्ट 50,000 एडेड, बट उसके आगे अच्छे खासे कॉल शॉर्ट्स हुए, ऑलमोस्ट 76,000 जो है कॉल उन्होंने शॉर्ट्स किए. एंड द इंटरेस्टिंग नंबर और रादर द शॉकिंग नंबर हियर इज यू कैन सी दिस कि 1 लाख लॉट्स ऑफ पुट उन्होंने लॉन्ग किए हैं. एंड दैट्स द रीजन आई वाज सेइंग कि जो ऑप्शन चेन में आपको नंबर दिख रहा है नीचे, दैट इज बेसिकली सम पुट बाइंग. एंड इसके अगेंस्ट इसको हेज करने के लिए दे हैव शॉर्टेड ऑलमोस्ट 53,000 लॉट्स ऑफ पुट. तो नेट ऑन नेट बेसिस पे इफ यू हैव अ लुक तो ऑलमोस्ट 24,000 लॉट्स या 25,000 ही कह सकते हैं इसको, लॉट्स ऑफ कॉल उन्होंने शॉर्ट किया उन्होंने नेट ऑन नेट बेसिस. एंड ऑलमोस्ट 50,000 लॉट्स ऑफ पुट उन्होंने बाय किया है. सो दैट इज इनसेन राइट. और द नेट पुट इज टू नेट कॉल इज बैक टू 3.52. तो ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 गुना ज्यादा पुट्स उन्होंने खरीद रखी है इन द लॉन्गर टर्म इन द इंडेक्स ऑप्शन. सो दिस अगेन नॉट वेरी गुड. तो यहाँ पर भी वी कैन सी कि नंबर्स उतने अच्छे नहीं है. डेटा में काफी ज्यादा नेगेटिविटी है. ऑप्शन चेन इज अगेन नेगेटिव एंड द डेटा फ्रॉम स्मार्ट मनी इज ऑल्सो नेगेटिव. तो ओवरऑल जो बुलिश पार्टिसिपेंट्स है फॉर नाउ दे लुक्स लाइक दे आर ओनली रिटेल. अगेन थैंक्स टू द टीवी गाइज एंड यूट्यूब एड्स एंड वट एवर लाइक उसके लिए कभी अलग टॉपिक पर हम बात करेंगे. बट एज ऑफ नाउ थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड. तो यू कैन एक्सपेक्ट द गैप डाउन. अगर फॉर एनी रीजन फ्लैट या माइल्ड गैप अप मिलता है आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट हेवीली. क्योंकि अगर किसी भी रीजन से ऊपर मिलता है मार्केट या फ्लैग भी मिलता है सो दीज गाइस प्रोबब्ली वुड रिक्वायर एन एग्जिट विंडो. उसके लिए द मार्केट हैज टू डिप वंस एंड दैट डिप कुड बी एन अपॉर्चुनिटी. ऑलरेडी अगर गैप डाउन हो जाता है सो आई वुड नॉट लाइक टू चेज इट. आई वुड लाइक टू अलाउ द वोलेटिलिटी टू बेसिकली सेटल डाउन एंड उसके बाद अगर कोई ट्रेड मिलेगा तो आई विल शेयर ऑन टेलीग्राम. बट इंडेक्स में क्या हो रहा है कि बेसिकली जैसे कल भी एक गैप डाउन हुआ फिर एक और गैप डाउन एक्सपेक्टेड है मंडे को. सो आफ्टर अ ह्यूज गैप डाउन और गैप अप ज्यादा कुछ बचता नहीं है करने के लिए राइट. क्योंकि गैप अप होता तो आई वुड हैव टोल्ड यू अगर रेजिस्टेंस के पास आता तो यू कैन सेल कॉल एंड प्ले सम डिफेंसिव शॉट्स. बट अभी ऐसा सिनारियो है आई टोल्ड यू कि डाउन साइड काफी ज्यादा खुला हुआ है एंड आई विल टेल यू द रीजन व्हाई. तो मार्केट में ना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस या मूविंग एवरेजेस इन जनरल काफी अच्छी तरीके से काम करते हैं. एंड इफ आई शो द वीकली चार्ट तो वीकली में यू विल सी कि 50 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ऑन अ वीकली चार्ट दैट शुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. व्हाई? क्योंकि ये 16,400 के आसपास है एंड जो मार्केट का लास्ट रीसेंट स्विंग लो था दैट वाज आल्सो अराउंड 16,400. तो 16,400 कुड बी एन इमीडिएट सपोर्ट. सबसे पहले तो 17,000 आएगा दैट विल हैपन ऑन मंडे. अगर 17,000 फॉर एनी रीजन डिप करता है तो 16,800 इज द नेक्स्ट सपोर्ट. और अगर इन द कमिंग डे 16,800 भी डिप करता है then we have a gap at 16,600 and 16,600 के बाद then 16,400 and in the longer run that is next 1 to 2 months I see at least एक बार यहाँ तक मार्केट आ सकता है by mid of 2022 that is the 20 exponential moving average on a monthly chart. तो 15,320 तक के चांसेस अभी तक खुले हुए हैं based on the current conditions. अगर और ज्यादा कुछ बैड न्यूज आती है फ्रॉम द फेड्स एंड तो दिस कुड इवन वर्सन. बट यहाँ तक तो मार्केट आना ही चाहिए. मतलब आएगा या नहीं अब ये ट्रेड लेके मत बैठ जाना पुट लेकर कह देना लॉस हो गया. Anyways, whatever I share is only for educational purposes. If you think that makes sense, then you can do your own due diligence on top of that and take the trade. अगर नहीं लगता तो सुन लो और जो मन में है कर लो यार. मतलब इट्स योर मनी एंड इट्स अल्टीमेटली गोइंग टू बी योर डिसीजन. तो यार आई थिंक इनफ हो गया आज के लिए. आई गेव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट्स एंड होपफुली दिस हेल्प. वंस अगेन अनदर स्मॉल रिक्वेस्ट वुड बी कि अगर ये कंटेंट जेन्युइनली पसंद आ रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन. इट रियली मोटिवेट्स मी. लास्ट 2 वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो आई गॉट द मोटिवेशन टू क्रिएट दिस वन टुडे फॉर यू गाइस. एंड आई होप इससे कुछ सीखने को मिल रहा है. एंड टेलीग्राम पे जो अपडेट्स है आई होप दे आर हेल्पफुल. और अगर प्रॉफिट वगैरह हो रहा है तो थोड़ा बता दो कमेंट्स में. सुन के अच्छा लगता है कि प्रॉफिट हुआ किसी का. बट एनीवेज आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो देन. थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड टिल द एंड. हैव अ गुड डे. टेक केयर एंड बाय बाय.